and what His Spirit is going to do in this place today. परमेश्वर का आत्मा जो आज इस जगह पे Do करने you वाला agree है। with me? Can we have a big shout? Amen. क्या आप मेरे साथ एक बड़ा आमेन कह सकते हैं? Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Where the Spirit of धन्यवाद the Lord यीशु। is, there is freedom. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। Hallelujah. So come on, let's pray together. आइए हम लोग साथ मिलकर प्रार्थना करें। Father, we thank you पिता हम धन्यवाद करते for हैं this day. आज के दिन के लिए। We thank you for your Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के We लिए। thank you for your precious Son, Lord Jesus. हम आपके कीमती पुत्र प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं। Father, we thank you and we commit ourselves in your hands. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। And Lord, I pray, Lord, that you think through my mind and speak through my mouth, Holy और Spirit. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे दिमाग से सोचें और मेरे मुंह से बोले Because प्रभु। Holy Spirit, you know what we need. क्योंकि पवित्र आत्मा आप जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। Not that what we want, वो नहीं जो हमें चाहिए, but what we need लेकिन वो जिसकी हमें जरूरत to है live in the fullness of Christ. कि हम यीशु की संपूर्णता में जिएं। So Lord, do whatever you want to do. प्रभु जो आप करना चाहते हैं वो आप करें। We just want to be ready. We just want to be available to be a vessel of honor for you, Jesus. हम बस ये चाहते हैं कि हम आपके लिए उस आदर का बर्तन बने रहें प्रभु। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Father. And I just want to welcome all of you and even the people who are watching us online, our online family. We welcome you. मैं आप सबका आज कलीसिया में स्वागत करती हूँ और हमारा ऑनलाइन परिवार जो हमें ऑनलाइन देख रहा है मैं आप सबका भी स्वागत करती हूँ। You are blessed. आप सब आशीषित हैं। Amen. We are blessed in Christ. हम यीशु मसीह में आशीषित हैं। And a quick update, Apostle is in Norway. और अपोस्टल अंकित नॉर्वे में हैं And we are so excited for what Lord is doing there in Norway. और हम बहुत उत्साहित हैं उसके लिए जो परमेश्वर नॉर्वे में कर रहा And है। we can't wait to hear the news, hear what is happening there. और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वापस आए और हम उन बड़ी कहानियों को सुने जो परमेश्वर वहाँ कर रहे हैं। Amen. And He will see you on Wednesday evening और हम आप सबको बुधवार शाम को यहाँ देखेंगे in our Valentine's with Jesus meeting. हमारी वैलेंटाइंस विद जीसस वाली सभा So में। do come and be a part of it. तो You will आप be लोग blessed. जरूर आए और उसका हिस्सा बने। Amen. And I also want to thank this opportunity that the Lord has given to me to share the word. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो उन्होंने मुझे दिया कि मैं आपके साथ आज वचन को बांट सकूं। And our Apostle Ankit as well. और हमारे प्रेरित अंकित के लिए भी मैं धन्यवाद करती Yes. Thank you, Jesus. So come on, let us go to the word. हूँ। आइए हम लोग वचन की ओर चलें। Hallelujah. हालेलुया। So the last 3 Sundays have been so powerful. The powerful teaching that we have been receiving from our apostle. और पिछले 3 सप्ताह बहुत ही अच्छे रहे जहाँ पर हमने बहुत अच्छी शिक्षा पाई हमारे प्रेरित अंकित के द्वारा। The true gospel. सच्चा सुसमाचार। What an empowering revelation that God has given to our apostle. कितना सशक्त कर देने वाला प्रकाशन जो परमेश्वर ने हमको दिया। And I know that, the Lord has broken so many lies from our lives and so many people's life. और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने अपने उस संदेश के द्वारा बहुत से झूठों को हमारे और बहुत से लोगों के जीवनों में तोड़ा है। Because the true gospel is what the body of Christ needs. क्योंकि सच्चा सुसमाचार ही है जो मसीह की देह को चाहिए। Once the true revelation comes in our heart, एक बार जब सच्चा प्रकाशन हमारे हृदय में आता है, that clears the understanding of who we are in Christ. वो इस बात की समझ को खोल देता है कि हम मसीह में कौन हैं। And as I was asking the Lord, what should I share? और जैसे कि मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु मैं क्या वचन बांटूं, So the apostle has been laying this foundation of who we are in Christ and what is the true message, the gospel. और जैसा कि अपोस्तल अंकित बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि सच्चा सुसमाचार क्या है और हम मसीह में कौन हैं। And our hearts are so filled with that revelation. और हमारा जो हृदय है वो इस प्रकाशन से बहुत भर गया है। So I want to take you all in the same journey of in Christ reality of who we are in Christ Jesus. और मैं आपको आज उसी यात्रा में आगे लेके जाना चाहती हूँ कि हम मसीह में कौन हैं। Amen.
You know, for every believer, हर एक विश्वासी के लिए after we confess जब हम इस बात को कन्फेस करते and we हैं receive Jesus as our Lord and Savior, और हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, after that, the most important thing for a believer is to know who he is in Christ. उसके बाद ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए जानना कि वो प्रभु यीशु मसीह में कौन है। Because we read in the Bible that God made us in His own image and in His likeness. क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है, And God made us to rule and reign. और परमेश्वर ने हमें शासन और अधिकार करने के लिए बनाया And we know the story that Adam fell and then sin entered, और हम इस कहानी को जानते हैं कि कैसे आदम के द्वारा पाप आया and there was separation between man and God. और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अलगाव और एक So there सेपरेशन, was a big identity crisis. और एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस, या नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, वो पहचान की कमी हो गई। Amen. So when you accept Jesus जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं and you are in this journey और आप इस यात्रा में हैं of उसके knowing साथ, Jesus, यीशु को जानने की it यात्रा is में, so important that you know that who you are in Christ. तो ये बहुत जरूरी है कि आप भी ये जाने कि आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं, What He has done for you, उसने आपके लिए क्या किया है, what